آج آئے ہم خدا کے کلام میں واز باعنوان باتیں اور منادی سے شریک ہوتے ہیں۔ ہم کچھ وقت یہ جائزہ لینے میں گزارتے ہیں کہ الفاظ جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں کتنے اہم ہیں، کیونکہ ہم خوشخبری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ الفاظ ہمیشہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ بہت سی مختلف اقسام کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بڑبڑانے کے لیے بھی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بے چینی کے وقت شکایت کرنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ روحانی لحاظ سے یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا موازنہ پناہ کے شہر سے کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ہماری روحوں کے قید خانے کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس حقیقت کے باعث کہ قید میں ایک شخص کو خوشی کی نسبت زیادہ رنج و درد کا تجربہ ہوتا ہے۔ قید میں لوگوں کے لیے خوشی اور شکر گزاری کی نسبت مسلسل بے چینی اور شکایت بھری باتیں ہوتی ہیں۔ تاہم دنیا کے لوگوں سے ہٹ کر کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ نجات پانے والے آسمانی لوگوں کو ہمیشہ آسمان کی بادشاہی کی طرف دیکھنا چاہیے اور آج بخشے گئے وقت کے لیے شکر گزار ہوں اور ایک دوسرے کو خوشی بھری باتوں میں شریک کریں۔ رسالے سول سے میں آپ کے لیے ایک مضمون پڑھتا ہوں۔ میرا سینئر جس نے میرے لیے ایک بار کھانا خریدا تھا، میں نے اسے کہا شکریہ۔ اپنی امی کو جو میرے لیے ہر روز میز سجاتی ہے، میں نے بدتمیزی سے کہا مجھے پانی دو۔ لوگ جانتے ہیں کہ جب ان کا سینئر ان کے لیے کھانا خریدے تو کیسے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تاہم وہ بہت کم اپنی ماں کو شکریہ کہتے ہیں جو اپنے تھکے ماندے بدنوں کو ان کے لیے گھسیٹتی ہیں اور روز صبح سویرے بہت جلدی اٹھتی ہیں تاکہ خاندانی صحت کا دھیان رکھ سکے۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی ماں سے بدتمیزی سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے سیون کے سب اراکین اپنے بولنے کا طریقہ درست کریں گے۔ ہمیں کہنا چاہیے امی ان لذیذ کھانوں کے لیے آپ کا شکریہ۔ آج سے ہم اس پر عمل کریں۔ خدا نے ہمیں یہ الفاظ محض ہمارے کانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بخشے تھے، بلکہ اس لیے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ کیا ہمیں انہیں عمل میں نہیں لانا چاہیے؟ مضمون یوں جاری ہے کہ میرے دوست کی سالگرہ پر میں نے اسے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ تاہم میری ماں کی سالگرہ پر میں نے کہا، ارے آج آپ کی سالگرہ ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اپنے خاندان والوں کی پیدائش کے دنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس مقام کے لیے ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے جب ہماری مائیں ہمیشہ ہمیں مہیا کرنے کے لیے توجہ دیتی ہیں۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کیسے ہماری مائیں ہماری خدمت کے لیے مسلسل اپنا وقت وقف کرتی ہیں۔ ہمیں صرف اپنی ماں کی قربانی یاد نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے والد کی قربانی بھی یاد رکھنی چاہیے۔ باپ خاموشی سے دن چڑھے کام پر جاتے اور دیر رات واپس لوٹتے ہیں جب سارا خاندان سو رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی محنت و مزدوری کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا آپ متفق نہیں ہیں؟ وہ حتیٰ کہ اپنی جوانی کو نظر انداز کر کے اپنے بچوں کو کھلانے، پہنانے اور انہیں چھت مہیا کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے خوشحال ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اگرچہ والدین خوشحال اور محبت بھرا ماحول بنانے کے لیے محنت سے کام کرتے ہیں، پر بچوں کو اسے یہ سوچ کر کے یہ ان کا فرض ہے، اسے سرسری نہیں لینا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی قیمت چکائے بغیر کچھ حاصل کر لینے کے حق کے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے۔ پھر بھی ماں باپ رضاکارانہ طور پر اپنے بچوں کی بلا مشروط خدمت کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایک وقت کا کھانا خریدنے والے ایک سینئر کے لیے آپ آسانی سے شکریہ کہہ کر اظہار تشکر کرتے ہیں۔ پھر بھی بعض لوگ بدتمیزی سے مجھے پانی دو کہہ کر اپنی ان ماؤں کو حکم دیتے ہیں جو ہر روز ان کے ناشتے سے لے کر ظہرانہ اور حتیٰ کہ عشاء تک ان کے ہر کھانے کا دھیان رکھتی ہیں۔ ہمیں بدتمیزی کا یہ لہجہ درست کرنا چاہیے۔ ایک دوست کو ہم کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے، لیکن اپنی ماں کو کہتے ہیں کیا آج آپ کی سالگرہ ہے؟ اگر آپ کی ماں نے یہ سنا ہوتا تو ماں ہوتے ہوئے اسے بہت مایوسی ہوتی۔ ایسا شخص آپ یا میں ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی مضمون کے مصنف کی طرح ہو سکتا ہے۔
बेशक ऐसे भाई और बहनें हैं जो अपनी माओं से मेहरबानी से पेश आते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो अब अपनी शुक्रगुजारी का ज्यादा खुलूस से इजहार करेंगे। जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अब से आइंदा को बाआसानी शुक्रिया कह सकते हैं। मैं इस मजमून से आपके लिए पढ़ना जारी रखता हूं। अपने साथी कारकुन को जिसने आपके लिए सिर्फ 5 मिनट इंतजार किया हो, आप कहते हैं मुझे माफ कीजिए, देर हो गई। ताहम अपनी माँ को जिसने सारी जिंदगी इंतजार किया है, मैं कहता हूँ आप मुझे मिलने क्यों आ गई हैं? क्या आपने कभी अपने वालिदैन से ऐसा कहा है? अवामी खिदमत के लिए इश्तहार है जिसमें कहा जाता है अम्मी शुक्रिया और मुझे आपसे मोहब्बत है। ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि आप अपनी माँ के फर्जंदाना फराइज अदा करते हैं। इस इश्तहार को वाकई एजाज देना चाहिए। आज से बल्कि इस लम्हे से आगे को अगर हमारे लिए कोई चीज किसी किस्म की मुश्किल पैदा करे तो हम अपने वालिदैन के सामने ये कहते हुए खुद को जाहिर करें कि अब तक मेरी परवरिश करने के लिए आपका शुक्रिया। इसके अलावा हम क्यों अपने रूहानी वालिदैन के बारे में नहीं सोचते? उन्होंने हमारे जागने, समझने और तौबा करने के लिए कितना लंबा इंतजार किया है। सिर्फ 5 या 10 मिनट तक हमारा इंतजार करने वाले दोस्त को हमें यकीनी तौर पर कहना चाहिए कि इंतजार करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे खुदा के बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने 6000 सालों तक हमारा इंतजार किया है? क्या हमें नहीं कहना चाहिए इंतजार करने के लिए आपका शुक्रिया? अगर आपने लंबे अरसे तक इंतजार ना किया होता तो मेरे लिए तौबा का कोई मौका ना होता। खुदा से तालीम पाने वाले फर्जंदों के तौर पर हमें अपने जमीनी माँ बाप के लिए अपने अल्फाज और अमाल दुरुस्त रखने के काबिल होना चाहिए। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप और मैं वो लोग बन सकते हैं जिनकी रूहानी बाप और माँ के लिए भी ऐसी सोच और ईमान होना चाहिए। हम सब इसे याद रखें, हौसला रखें और आसमान की उम्मीद रखें। जमीन पर हम चाहे जो भी करें, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। लोगों के लिए कई मुआशी मुश्किलात पैदा करते हुए सारी दुनिया में माशियत के तमाम शोबे तंजली का शिकार हैं। ताहम क्या खुदा हमारे लिए ऐसा मुल्क तैयार नहीं कर रहे जहां ऐसी कोई मुश्किल ना होगी? ये जलाली आसमानी दुनिया है जहां कोई तकलीफें, रोजगार के मसाइल, मुश्किलात, मातम, रंज, दर्द और ना ही मौत होगी। हमें सच्चाई देते हुए, सिखाते हुए और कलीसिया कायम करते हुए क्या इसीलिए खुदा ने आसमान की बादशाही की जलाली राह नहीं खोली है ताकि हम खुदा के फजल में दुरुस्त राह पर चल सकें? लिहाजा हम सबको अपने सयून के खानदानी अराकीन के इन अल्फाज के साथ हौसला अफजाई करते हुए मदद करनी चाहिए कि हौसला रखें और अपनी बेहतरीन कोशिश करें। आसमान की उम्मीद के साथ हौसला रखें। अपनी सारी जिंदगी में हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्या हो अगर दौड़ में आपका सांस फूल जाए मगर कोई आपका हौसला बढ़ा रहा हो? अगर कोई आपका हौसला बढ़ाने वाला ना हो तो आप एक और कदम भी ना उठा पाएंगे। ताहम अगर कोई हो जो आपका हौसला बढ़ाए तो आप तेज दौड़ेंगे। अगरचे आपको काफी हद तक सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, पर आप दौड़ेंगे। इसके जरिए क्या हम सीख नहीं सकते कि जो अल्फाज हम एक दूसरे से कहते हैं वाकई कितने पुरअसर होते हैं? आज हम सीखेंगे कि जो बातें हम कहते हैं उनका असर और जिंदगी बख्श कलाम जिसकी हम दुनिया को बचाने के लिए मुनादी करते हैं, उनके बारे में किताब मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। गलतियों की किताब से बाब 6 आयत 7 देखते हैं। फरेब ना खाओ, खुदा ठठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी क्या काटेगा, जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। फर्ज करें हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने में 5 साल लगेंगे और फर्ज करें कि इन 5 सालों में जो बातें हमने कही वो फैसला कुन उनसर हैं कि आया हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे या नहीं। क्या यसू ने नहीं कहा था कि तमाम बातें जो हम कहते हैं अदालत के दिन हमारा फैसला करेंगी? लिहाजा हमें खूबसूरत बातों, हौसला अफजा बातों, काबिल सताइश बातों और शुक्रगुजारी की बातों का ढेर लगा लेना चाहिए। अगर हम इन बातों को जमा करें तो तमाम बातें जो हम कहते हैं वो अदालत के दिन क्या करने के लिए, हमारा फैसला करने के लिए हमारे पास लौट आएंगी।
तो फिर जो कुछ हम बोलते हैं क्या वो इंतहाई अहम नहीं है? इसीलिए गलतियों बाब 6 कहता है कि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हमने बुरी, गंदी बातें और सख्त बातें कही हैं तो फिर हम इसी लम्हे से अपनी बातों को पाक करें। मुझे उम्मीद है कि हम इस किस्म की बातों से छुटकारा पाएंगे जो हमने माजी में कही थी। लेकिन अगर माजी में कही गई हमारी बातों का इंदराज बहुत अच्छा है तो हम इसे जारी रखें। आयत 8 से देखते हैं, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ हमें क्या करना चाहिए? नेकी करें। सियासी राय, मुआशी सूरत हाल, नजरियात या अपनी जाती दिलचस्पियों का ख्याल किए बगैर सबके साथ नेकी करें। ये खुदा का कलाम है। जब आप नेकी करते हैं तो आपके मुंह से खुद ब खुद अच्छे अल्फाज निकलेंगे। इफ्सियों बाब 4 आयत 29 देखते हैं। इस आयत में कलाम के जरिए हमारी माँ हमें हमेशा काबिल कदर सबक सिखाती हैं। कोई भी बोले बगैर अपनी सारी जिंदगी गुजार नहीं सकता। दूसरों के लिए बेफायदा बातें कहने की बजाय हमें वो बातें कहनी चाहिए जो किताब मुकद्दस इस्तेमाल करना सिखाती है। आयत 29 देखते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हमें इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि कई अक़साम के अल्फाज में से हमें किसी भी बुरी और ना ही किसी गंदी बात को अपने मुंह से निकलने देना चाहिए। बल्कि किस किस्म की बात? सिर्फ वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। ये बाप और माँ की तालीम है। इस बात को यकीनी बनाएं कि हम वो बोलें जो उन्होंने हमें सिखाया है। इस दुनिया में रहते हुए, ख़ुसूसन शैतान के कामों का मुकाबला करते हुए, हमारे दिलों में आग की मानिद गुस्सा भड़क उठता है। ऐसी कुव्वत जो इस गुनाह भरी दुनिया को बदल सकती है वो खुदा का कलाम है। लिहाजा हमें खुदा की बख्शी तालीमात को याद रखना है। बुरी और काबिल नफरत बातें कहने की बजाय क्या हमें वो नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों की तरक्की और दुनिया को पुरफजल और खूबसूरत बातों से बदलने और पाक करने में मावन हो? जो लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं वो कोई अजर नहीं पा सकते। सही? इमसाल बाब 15 आयत 1 देखते हैं। नरम जवाब क्या करता है? कहर को दूर कर देता है। पर करख बातें क्या करती हैं? गजब अंगेज हैं। जब रोम अपनी ताकत की बुलंदियों पर था तब उसने कई मुमालिक फतह किए थे। एक गांव को फतह करते हुए एक रोमी कप्तान ने गांव पर एक नजर डाली और उसे मालूम हुआ कि वहां सिर्फ औरतें और बच्चे थे। उसने लोगों से कहा, मैं तुम सबको आजाद करने को हूँ और मैं तुम्हें इजाजत दूंगा कि अपने साथ अपनी सिर्फ एक अजीज तरीन चीज ले जाऊं। उसके ऐसा कहने पर अक्सर लोग अपने सामान के साथ चल दिए। अचानक एक औरत नजर आई जो कपड़े से मुकम्मल ढकी एक बहुत बड़ी शय ले जाती नजर आई। तब एक सिपाही ने पूछा, ये क्या है? उसने उसे अपना शोहर दिखाया। सिपाही गुस्से से भर गया और जनरल को इत्तला दी। जनरल चिल्लाया कि यह नाकाबिले कबूल है। क्या हमें इस आदमी को फौरन मार डालना नहीं चाहिए? जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उस औरत ने बड़ी अक्लमंदी से कहा, जनरल, क्या आपने साफ तौर पर वादा नहीं किया था कि हम अपनी कोई अजीज तरीन चीज ले जा सकते हैं? मेरे लिए मेरा सबसे कीमती खजाना मेरा शोहर है। ऐसा कहकर वो अपने शोहर को बचाने और अपने दुश्मन से बच निकलने के काबिल हुई। आप सब, क्या आप नहीं सोचते कि हर लफ्ज जो हम बोलते हैं बहुत अहम है? एक बादशाह और एक सजाए मौत के मुजरिम के बारे में एक और कहानी है। कौमी बगावत के बाइस
बादशाह को खुद मौत की सजा में मुलविस मुजरमों की सजा देने के लिए जाहिर होना पड़ा था। काबिले तर्स आंखों से एक सजाए मौत के कैदी ने बादशाह से पानी का एक गिलास मांगा। अगरचे उसकी अर्ज मान ली गई थी, पर वो पानी का गिलास थामे खौफ से कांप रहा था। पत्ते की तरह कांपता हुआ वहां खड़ा वो बहुत काबिले तर्स लग रहा था। इंसान होते हुए बादशाह ने कहा, अगरचे तू एक कैदी है, पर जब तक तू ये पानी पी नहीं लेता तू हरगिज मारा ना जाएगा, इसलिए फिक्र ना कर बल्कि पानी पी ले। उसी लम्हे पानी का ग्लास कैदी के हाथ से गिरकर टूट गया और कैदी को मारा ना गया। जैसा कि उसे कहा गया था कि पानी पी लेने तक वो कत्ल ना किया जाएगा, उसने पानी को पीने के काबिल ना छोड़ा और फिर मारा ना गया। अपने वादे को पूरा करने के लिए बादशाह ने मौत के सजावार को आजाद कर दिया। यूं हम देख सकते हैं कि बहुत सी बातें जो हम करते हैं बहुत पुर असर हो सकती हैं। इमसाल बाब 15 में ये लिखा है कि नरम जवाब क्या करता है? दूसरे शख्स के कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। यहाँ आज शोहर है, बीवियां हैं और खानदानी अराकीन मिलकर इबादत कर रहे हैं। सिर्फ खानदानी अराकीन में ही नहीं बल्कि हमारे सयून के खानदानी अराकीन में भी इसी लम्हे से करख्त बातें बोलने के बजाय नरम जुबान बोलने पर अमल करें। हम कुलसियों बाब 4 से देखते हैं। कुलसियों बाब 4 आयत 6, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो के तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि हमारी गुफ्तगू हमेशा खुदा की बरकत, फजल और नमकीनी से भरपूर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर एक को खुश करने वाली बातें कहनी चाहिए। आए तीतुस बाब 2 आयत 7 से देखते हैं, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो। हमें ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। आप सब अल्फाज के ज़िमन में क्या ये माँ बाप नहीं जिनका हमें अपने लफ्जों से सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए? हमें सबसे ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है और जिन्होंने हमारे लिए सबसे ज्यादा अपने आप को वक्फ भी किया है। आज इस लम्हे से हमें इस सोच से छुटकारा पाना है कि हम हर उस चीज के जो माँ बाप से मिलती है हकदार हैं। इस जमीन पर ऐसा कोई नहीं जो मुफ्त में खिदमत करवाने के लायक हो, लेकिन चूंकि हमारे वालिदैन हमें हर रोज वो चीज मुहैया करते हैं तो हम शायद ये जाने बगैर कि ये कैसे दी जाती है इसे पाने के आदी हो जाते हैं। अब हमें सीखने के काबिल होना चाहिए कि हम कैसे अपने वालिदैन का बदला चुकाएं। तीतुस बाब 2 में ये कहा गया है कि हमें ऐसी सेहत कलामी दिखानी चाहिए जो मलामत के लायक ना हो। आए पहला पतरस की किताब बाब 2 की तरफ जाते हैं। जो बातें हम कहते हैं उनके बारे में कई असबाक हैं, फिर भी उन बेशुमार बातों में से जो असबाक हमें कभी नहीं भूलने चाहिए वो खुदा के कलाम से ताल्लुक रखते हैं। पहला पतरस बाब 2 आयत 1 देखते हैं, बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजात बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आपके ख्याल से क्यों खुदा हमें कहते हैं कि जब हम बोलें तो इस किस्म की बातें कहें? आखिरकार ये खुदा की मर्जी है कि हम निजात हासिल करने तक बढ़ते जाएं। आयत 3 देखते हैं, अगर तुमने खुदावन के मेहरबान होने का मजा चखा है, खुदा हम पर मेहरबान है। आसमान में हमने ऐसे संगीन गुनाह किए थे जो अब्दी मौत के लायक थे और हम जमीन पर फेंक दिए गए थे।
पर चूंकि हमने खुदा के फजल और रहम का मजा चखा है तो हमें इस फजल को दुनिया के सब लोगों में बांटना चाहिए। जैसा कि किताब मुकद्दस में कहा गया है कि ऐसा करने से हम अपनी निजात में बढ़ सकते हैं, तो हमें इस पर अमल करने के काबिल होना चाहिए। आपकी वजह से ऐसा कहने की बजाय आपको अक्सर कहना चाहिए आपका शुक्रिया। अगर आपकी वजह से जैसे अल्फाज कहें तो इसके साथ मनफी अल्फाज मुंसलिक हैं। आपकी वजह से ये हुआ था, माँ की वजह से सब गड़बड़ हो गया, ये सब अबू की वजह से हुआ है। अपना आप इस तरह से जाहिर करने की बजाय सयून में हमारे सब भाइयों और बहनों को कहना चाहिए कि अब्बू और अम्मी का शुक्रिया और खुदा का शुक्रिया। ऐसा करके हम नए सिरे से पैदा हों। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने हमें ये सबक दिया है ताकि हम अपनी निजात में बढ़ सकें। पहला पतरस बाब 3 आयत 8 से देखते हैं, गर्ज सबके सब यकदिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के इव्ज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, क्या कोई है जो अच्छे दिन देखना नहीं चाहता? अगर ऐसा है तो मेहरबानी से अपना हाथ उठाए। अब से आगे को हमारे अच्छे दिन हर रोज जारी रहेंगे। जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे तो हमें अपनी जुबान का क्या करना चाहिए? क्या इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बोलते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए? जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। आपको इसे अराकीन के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने या दूसरों को अपनी तरफ करने की नीयत से ऐसा नहीं करना चाहिए। बदी से किनारा करें और नेकी को अमल में लाएं। सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहें, क्योंकि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है। आसमान से खुदा हमेशा हमारे दिलों को देखते हैं कि आया ये रास्तबाज है या बदकार। इसलिए आदमी जो बोता है वही काटता है। आपके कामों के मुआफिक आपके साथ क्या होगा? आप बढ़ते जाएंगे। ऐसा कोई माजरा हरगिज मौजूद नहीं है कि बदी से बोकर रास्तबाजी का दरख्त उगा हो और ना ही रास्तबाजी से बोकर बदी का फल पैदा होता है। आयत 12 दोबारा देखते हैं, क्योंकि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावन की निगाह में हैं। इसका मतलब है कि वो जो बदकारी करते हैं खुदा उनके खिलाफ है। अच्छे दिन देखने वालों के तौर पर हम अपनी जुबानों और होंठों को बदी से बाज रखें और अपने होंठों को हर तरह की मकर की बात से बाज रखें। खूबसूरत अल्फाज और खुदा के जिंदगी के ऐसे कलाम को बांटने के लिए जो दूसरों की तरक्की को बढ़ाए और उन अल्फाज को सुनने वाले के लिए फायदेमंद हो। हमारे पास सिर्फ खुदा का अच्छा ज़मीर हो। पहला यूहन्ना बाब 4 आयत 5 से देखते हैं, वो दुनिया से हैं, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। दुनिया से ताल्लुक रखने वाली बातें भी होती हैं और खुदा से ताल्लुक रखने वाली बातें भी होती हैं। क्या खुदा से ताल्लुक रखने वाली बातें ऐसी बातें नहीं जो हम मुनादी के दौरान कहते हैं ताकि हम बनीनो इंसान को निजात का कीमती तोहफा दें? बातें जैसे कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए फसा मनाएं, तमाम आफतों से बचें, गुनाहों की माफी हासिल करें और आसमान पर जाएं। वो बातें जो हम मुनादी के दौरान कहते हैं खुदा की पसंदीदा बातें हैं। इसीलिए अगर आप मुसलसल दुनिया की बातें करें तो आप दूसरों की तरक्की का बाइस ना होंगे। अब दूसरा तीमोथियुस बाब 4 से मालूम करते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की करें। दूसरा तीमोथियुस बाब 4 आयत 1 से देखते हैं, खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि
کیا کر؟ تو کلام کی منادی کر۔ ہم خدا کی باتیں کہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیاوی اور مادی باتیں جو دوسروں کی ترقی نہیں کر سکتی کہنے کی بجائے ہمیں ایسی باتیں کہنی چاہیے جو تمام لوگوں کی رہنمائی اس جہان کو کرے جہاں نہ موت، نہ درد یا غم نہ ہو، بلکہ جہاں ہمیشہ کی زندگی اور شادمانی رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ فقط ان باتوں کو سنیں تو وہ نجات پا کر آسمان پر جائیں گے، وہ گناہوں کی معافی بھی حاصل کریں گے اور آسمان میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بھی بنیں گے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمارے لیے دوسروں کی ترقی کا یہی طریقہ ہے۔ جب ہم خدا کی تعلیمات پر چلیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خدا کا شکر ہے، ہمارے بھائیوں کا شکریہ، ہماری بہنوں کا شکریہ، باپ اور ماں کا شکر ہو، ہمارے آسمانی خاندان کا شکریہ۔ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کی منادی کے دوران شکریہ کہہ کر دوسروں کی ترقی کا باعث بنے۔ آیت 2 سے جاری رکھتے ہیں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ زیادہ تر لوگ کہانیوں پر متوجہ ہوں گے جن کی نہ تو قدر ہے اور نہ ان میں زندگی ہے۔ آیت 5 دیکھتے ہیں، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ جب آپ ایک مبشر کے طور پر کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ دنیا کے سب لوگوں کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مبشران کو ہر روز کس کا کلام لوگوں کو پہنچانا ہے؟ یہ مبشران کا کام ہوتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے ہونٹوں پر رکھے اور اسے لگاتار لوگوں کو پہنچاتے رہیں، فصح منائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، باپ اور ماں پر ایمان لائیں اور آسمان کی بادشاہی کی نجات پائیں۔ یہ بہت شاندار ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ آیت 6 سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ دوسروں کی ترقی کا سب سے بہترین طریقہ مستعدی سے بشارت کا کام انجام دینا ہے۔ خدا کے کلام کو اس خاندان کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ گرم جوشی سے بانٹنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں پر خدا کے کلام کو رکھ کر سب لوگوں کے ساتھ بانٹنا۔ ہم اکثر کہتے ہیں شکریہ، آپ کا شکریہ، مجھے معاف کیجیے۔ یہ سب وہ ہے جو ہم نے تب سیکھا تھا جب ہم کنڈر گارٹن اور ایلیمنٹری اسکول میں تھے۔ ہمیں وہی کرنا ہے چاہے ہم گھر، چرچ اور معاشرے میں ہوں، اپنی قوم میں کہیں بھی یا دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں، ہم ہمیشہ احتیاط سے سوچیں۔ اگر کوئی بات دوسروں کی ترقی کے لیے نہ ہو تو یہ ہمارے منہ سے نہ نکلے۔ جب تک ہم یہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی قوت کو سمجھ پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے پاک و قیمتی کلام کو بھی جسے ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ چونکہ ہم نے دوسروں سے پہلے خدا کے کلام کو سنا اور سیکھا ہے تو کیا ہمیں اسے ہمارے بعد آنے والے نئے اراکین کو مسلسل بتانا نہیں چاہیے؟ ہمیں ان سے کہنا چاہیے یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچائی ہے۔ ہمیں خوشخبری پھیلانی چاہیے کہ آسمانی باپ اور ماں ہم سے محبت رکھتے ہیں، آپ میری زندگی میں سب کچھ ہیں۔ آسمانی ماں کے اس کلام کو یاد رکھتے ہوئے ہمت نہ ہاریں بلکہ دل کو مضبوط رکھیں۔ ہم مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامیں، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنیں اور آسمان کی راہ پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم سب مل کر اپنے خوبصورت گھر میں داخل ہو سکیں۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ ہمارے سیون کے سب بھائی اور بہنیں ان اچھی خبروں کو دنیا کے سب لوگوں میں بانٹیں گے، میں آج کا واعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔